Hello, good morning students. Today I am sending a video on remaining question and answer of second topic, second story, The Lion King. Now here I have sent its PDF to you, but one more time I explain that questions and their answers. Actually I am not feeling well, so that is why on the blackboard I am not making this video. Using this mobile I am making this video. So try to understand, but in coming days whenever it is required shooting the video on blackboard, I will be shoot, no problem. Okay. So today the questions are: copy the sentence and fill in the blanks. You can see here students, fill in the blanks are there. We have to write the fill in the blanks. The first one is the sun came up over the dash hot and dash just as it had since the dash of time. And the answer is the sun came up over the African grassland hot and brilliant just as it had since the beginning of time. These lines you will get in the starting. जो लाइन है वहां पे ये आपको मिलेंगे टॉपिक की शुरुआती में. B1 is there. Elephants plodded, antelopes dash through the grass, giraffe dash raced and once walked in a dash line. तो यहाँ पे हमें एलिफेंट्स के और एनिमल्स के वॉकिंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे चलते हैं, सो उससे रिलेटेड लाइन है. एलिफेंट्स प्लॉडेड, PLODDED प्लॉडेड मीन्स पैर घसीटता हुआ प्लॉडेड. एलिफेंट्स प्लॉडेड. एंटीलोप्स लिप, जंप करके चलते हैं, लिप. थ्रू द ग्रास. जिराफ्स लोप, LOPED लोप मीन्स छलांगे लगाते हुए. डैश रेस, हु रेस, चीता, CHEETAHS cheetahs because they are in plural. Cheetahs race and ants walk in a single line. Ants are walking in single line now, so here single word will come. Okay. Now the next, they were all journeying to, where they all journeying to? Pride Rock. What was the name of that rock? Pride Rock. PRIDE, Pride, ROCK, Rock, Pride Rock. Next, Rafiki carried the cup to the dash of the dash and dash him high for all gather below to have a dash. Rafiki carried the cup to the edge. कड़े पे है ना, कड़े पे. एज मीन्स कड़ा होते है किसी भी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्केल एंड दैट इज द एज ऑफ द स्केल. So the rock had edge. So Rafiki carried the cup to the edge of the rock, ROCK rock, and held him high for all gather below to have good look. सबको वो अच्छी तरीके से दिखने के लिए उसने उसको कप को ऊपर उठाया था. ये क्वेश्चन इज देयर. A loud cheer rose from the plains. Elephants dash, the monkeys dash, while the zebras, rhinos, and a dash of animals dash their dash. Animals की जो लैंग्वेज होती है वो उसके बारे में ये फिल इन द ब्लैंक से. सो एलिफेंट्स ट्रम्पेड है ना, तुरही, वो अपने मुंह से आवाज निकालते हैं इतनी बड़ी सी, उसको ऊपर उठाती हुई. दैट इज एलिफेंट्स ट्रम्पेड, TRUMPETED, ट्रम्पेड. Monkeys screech, SCREECHED, screech. While the zebra and rhinos and a host of animal, अपने समुदाय के साथ, अपने बाकी एनिमल के साथ, host, HOST, host of animals, stamp, STAMPED, बहुत ही मतलब अभिमान के साथ, stamp their hooves, HOOVES, hooves. जब वो ग्रुप में चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हूव्स कहा जाता है, HOOVES
whose. So already I had sent its PDF to you, but only one more time I explain the questions and their answers. No problem. Now the next question is write short answers. Write short answers. Write short answers. ऐसा क्वेश्चन है ना. Write short answers. Here it is. The first question is, what was the astonishing sight? What was the astonishing sight? And the correct answer is begin. मतलब how the answer will start. Answer कैसे शुरू होगा. वहां पे ऐसी आश्चर्यकारक बात कौन सी थी. So answer is across the vast pride lands. है ना. Vast pride lands. ये आश्चर्य करने वाली बात थी. Next question. What was everyone celebrating? वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे. स्टार्टिंग इज द बर्थ ऑफ किंग मुफासा's सन. है ना. और द बर्थडे ऑफ किंग मुफासा's सीन. है ना. उसके जन्म की, उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन वो कर रहे थे. द बर्थ ऑफ किंग मुफासा's सन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड राफिकी डिप हिज फिंगर इन द लिक्विड? उसने अपने फिंगर को लिक्विड में क्यों डुबोया था. टू मेक अ स्पेशल मार्क ऑन द इन्फांट्स फॉरहेड. इन्फांट्स के फोरहेड पे, माथे पे तिलक लगाने के लिए अपने फिंगर्स उसने लिक्विड में डुबो दिए थे. Why did Rafiki dip his finger in the liquid? To make a special mark on the infant's forehead. D question. Why was Scar angry with Simba? Why was Scar angry with Simba? उससे सिम्बा का गुस्सा क्यों आ रहा था स्कार को. Because now Simba would become the next king. है ना. वो उनका आने वाला राजा बन रहा था. है ना. Now Simba would become the next king. Last question. Why should Scar have gone to the presentation ceremony? उसको उस सेरेमनी में क्यों जाना चाहिए था. उस समारोह में क्यों जाना चाहिए था. Because Scar being a brother of Mufasa and uncle of Simba. है ना. वो उनके फैमिली मेंबर के जैसे, मतलब फैमिली मेंबर ही था. सॉरी, जैसे नहीं. Actually, he was their family member because he was uncle of Simba and brother of Mufasa. That is why he should be present in that ceremony, but he didn't go. है ना. इसलिए आंसर क्या आएगा. Scar being a brother of Mufasa and uncle of Simba. Okay, understood? Now the next question is note down the lines from the story in which. ये क्वेश्चन है. यहाँ पे ऐसी लाइन दी है कि उससे रिलेटेड लाइन आपको स्टोरी में मिलेगी. है ना. स्कार मॉक्स मुफासा मेकिंग एन अगली फेस व्हेन ही कम्स टू हिज केव. सो उसकी लाइन क्या मिलेगी. बिकॉज स्कार हेट्स मुफासा. उसका क्या करता था. तिरस्कार करता था. सो इन स्टोरी में क्या लाइन आई उससे रिलेटेड. ये क्वेश्चन इतना कुछ मायने नहीं रखता है और ना ही आपके एग्जाम में भी आएगा. बिकॉज उतना ही आपको समझने के लिए कि इससे रिलेटेड लाइन स्टोरी में क्या है. फॉर दैट पर्पज ओनली दे हैव मेंशन दिस क्वेश्चंस. सो ओनली देयर इट मीन्स रिलेटेड 2-3 वर्ड्स लाइन्स. इट मीन्स देयर लाइन हैज ओनली 2-3 वर्ड्स दैट विल कम. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का क्या आएगा. स्कार हेट्स मुफासा. ओके, वो आएगा. मुफासा रिमाइंड स्कार अबाउट व्हाट ही शुड नेवर फॉरगेट. स्कार ने क्या नहीं भूलना चाहिए था. Now Simba would become the next king. ये अभी सिम्बा उनका राजा बनने वाला था. ये नहीं भूलना चाहिए था. Scar mocks Mufasa before leaving the cave. Scar ने मुफासा को मतलब वैसे ही छोड़ के वो अपने केव में, अपने डेन में चला गया. So Scar turn on his back and walk away. वो वहां से चला गया. ऐसी लाइन स्टोरी में. अभी आपके पास बुक नहीं इसलिए आपको नहीं समझेगा, बट कोई बात नहीं. ऐसी रिलेटेड लाइन स्टोरी में है तो इतना ये क्वेश्चन नहीं है. ओनली एक्सप्लेनेशन और ये लाइन क्या है ये समझने के लिए बस ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. बाकी इसका कुछ राइटिंग वर्क ना ही एग्जाम में आएगा और ना ही ऐसा कुछ है.
उसका पर्पज क्या है वो भी आपको नीचे दिया है। मुफासा द किंग स्पीक्स टू हिज सन सिम्बा अबाउट अ किंग्स टाइम। राजा के बारे में वो बता रहा था। तो कौन सी लाइन आई है स्टोरी में? यहाँ पे एक लाइन आई है, देखो एंडिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो। अ किंग्स टाइम, यू कैन सी हियर, अ किंग्स टाइम एज अ रूलर राइजेस एंड फॉल्स लाइक द सन। यही लाइन हम मेंशन करेंगे, है ना, जो अपने स्टोरी में आई है। फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, नॉट नेसेसरी राइटिंग दिस क्वेश्चंस। Simba is excited to hear his father's words. Why he was very excited, and after exciting, what he asked to his father, "Wow, all this will be mine." ये लाइन क्या बताती है? Wow, all this will be mine. Great, Dad. इस लाइन से पता चलता है कि Simba was very excited what his father was telling him. ये हमें पता चलता है। All right, ये ऐसा क्वेश्चन था। Now, student, the next question is there. That is, you know, after this story, before starting this story, I had told you we have families. So like this, animals have their families, they have their babies, they have their relatives. उनके पास भी हमारे जैसी फैमिली होती है, वो भी खाना खाते, वो भी उठते, वो भी अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं ना, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें देते हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? इट मीन्स इफ वी हैव फैमिली, सो एनिमल्स हैव देयर फैमिली एंड हाउ दे बिहेव विद देयर babies and how they celebrate their functions with another animals. ये हमें याद रखना है कि वो भी हमारे जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स को बुलाते हैं। बस the 5 is on a discussion type question is there. So really it was very nice story about the animals and their life, and they are living like human beings. हमारे जैसे भी उनकी एक जिंदगी होती है, यही हमें ध्यान में रखनी है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार आप जू में गए हैं जहाँ पे प्राणियों को, एनिमल्स को रखा जाता है ना, तो जू में आपने देखा होगा उनकी पूरी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं। और देखो वो अपने बच्चों को देखकर उनकी आंखों में भी प्यार होता है, जैसे हमारे मम्मी पापा की आंखों में हमारे लिए प्यार होता है ना। उनको भी इमोशंस है, भावनाएं हैं, है ना। यही पर्पज है स्टोरी का। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कॉन्वर्सेशन बेस्ड, सेम इट वॉज इन आवर फर्स्ट स्टोरी। तो ये कॉन्वर्सेशन, ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपको क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आप बात करना सीखो। और बहुत बार ऐसा होता है कि बात करते करते सेम सेंटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो इन स्कूल एंड आस्क टू योर फ्रेंड व्हाट डिड यू ईट टुडे, कि तुमने आज क्या खाया? तो वो बोलता है आई एट पोटैटो, मैंने सुबह में पोटैटो पराठा खाया। तो हम बोलते सेम, आई ऑल्सो ईट पोटैटो पराठा, है ना। कभी कभी ये बातें क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बट फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक, हाउ टू मेक द सेंटेंस। कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आता है कि सेंटेंस कैसे बनाने चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए। मे बी मोस्टली द आंसर विल बी सेम, आंसर्स हमेशा सेम आएंगे, उसका कुछ नहीं, बट आपको बोलना जरूरी है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, नाउ इट इज अ क्लास एक्टिविटी, बट इट इज वेरी बैड नाउ डेज, यू आर एट होम एंड mom is teaching on mobile, so let it be. When your school will start, again we will revise this speaking part. Okay, now here the question is, now one student from each group will speak one sentence about the film. किसी फिल्म के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ग्रुप पे डिस्कशन है, ये ग्रुप डिस्कशन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप है, और फर्स्ट ग्रुप क्या बोल रहा है, देखो, वी सॉ द मूवी द लॉयन किंग, वी लाइक, हमें वो मूवी क्या पसंद आई, नहीं पसंद आई, ऐसा भी है। तो हम लिखेंगे यस वी लाइक वेरी मच, हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। ओके, फर्स्ट ग्रुप से आंसर आया। सेकेंड ग्रुप से क्या है, ऑल ऑफ अस एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म द लॉयन किंग, वी एंजॉयड द पार्ट ऑफ बर्थडे सेरेमनी। उस फिल्म में एक पार्ट आया था जो बर्थडे सेलिब्रेशन का था, वो हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, थर्ड ग्रुप क्या बोलता है, कैन वी एवर फॉरगेट वॉल्ट डिज्नीज मूवी द लॉयन किंग, वी लाइक सो मच। थर्ड ग्रुप क्या बोलता है, क्या हम कभी भूल पाएंगे उस मूवी को? तो नहीं, हम नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज वी लाइक, हमें वो मूवी क्या है, सच में बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम उसको भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। नाउ फोर्थ ग्रुप इज टेलिंग मेनी ऑफ अस हैव वॉच्ड द फिल्म द लॉयन किंग्स नंबर ऑफ टाइम्स वी वोंट फॉरगेट। हम इतनी बार हमने देखा है कि वो मूवी हम भूल ही नहीं सकते। फॉरगेट मीन्स भूल जाना।
रियली वी वोंट फॉरगेट दैट मूवी बिकॉज मैनी द नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार हमने वो मूवी देखी, जो भी अच्छी मूवीज होती है ना टेलीविजन पे भी, सो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हम वो मूवीज देखते, जैसे छोटे बच्चों की हो या कोई फैमिली मूवी हो, हम बोर नहीं होते, अगेन एंड अगेन हम देखते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वो दंगल आई थी मूवी है ना सलमान खान की, उड़दा बंद दबंग, तो मेनी टाइम्स यू हैव सीन दैट मूवी, है ना, कितनी बार आपने देखी होगी वो, है ना। So like this discussion, with the way of discussion we have to start communication with another, and we should speak in English very nicely because you are learning in ICSE pattern. So for improving your speaking skill, like this activity have mentioned in your textbook. Okay, now fun with grammar. अभी fun with grammar आपने grammar में पढ़ा होगा। Whenever we write the name of any school, particular person, or the name of person, woman, boy, actor, actress, always their name will come in capital letters, है ना। ये बात आपने देखी होगी कि कभी भी किसी का नाम आता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही आता है। ओके, है ना, आए समझ में। ओके, सो यहाँ तक हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन हम ये करेंगे बिकॉज माई मोबाइल इज आई थिंक डिस्चार्ज, सो लेट इट बी इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस। बाय एंड टेक केयर।